السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وضو کرنا فرض ہے، اور وضو کا طریقہ اور تفصیل سلسلے وار قرآن میں بتایا گیا ہے۔ یہ چھٹے پارے کی چھٹی آیت اور سورہ چھٹے پارے کی سورہ آیت نہیں، چھٹے پارے کی چھٹی آیت ہے۔ تو آیت شریفہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ جہاں پر بھی قرآن میں یا ایھا الذین آئیں گا، آپ لوگ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو۔ تو یہ پوری مدنی آیتوں میں تقریباً زیادہ تر ایسی ہی مخاطبت ہے، خاص ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ مکی آیتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے اور خل سے خطاب ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطبت ہے تو خل سے خطاب ہے، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کافروں کو۔ اور مدنی آیتوں میں خل سے بھی زیادہ تر خطاب ہے، لفظ خل سے شروع ہوتی ہے وہی۔ اور احکام جہاں ہماری شریعت کے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ راست مسلمانوں سے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فغسلوا وجوہکم، فغسلوا پس دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، اس کی جمع وجوہ ہے۔ تم سب اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا رب ہم کو پکار رہا ہے، اور ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم کو ہمارا رب اے ایمان والوں کہہ کر پکار رہا ہے، ان لوگوں کو جو نماز اور وضو کرنے والوں کو مخاطبت ہے یہاں پر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کے لیے، فغسلوا وجوہکم، پس دھو لیا کرو اپنے چہروں کو۔ چہروں کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کی تعریف یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، یہ کان کی لو سے لے کر یہ کان کی لو تک اچھی طرح سے ہاتھ پھراتے ہوئے 3 بار پورے چہرے کو دھونا ہے۔ یہ وجوہکم کے کا مطلب ہوا۔ اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یدن بولتے ہاتھ کو، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، مرفق کہتے ہیں کوہنیوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک۔ تو اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ اب کوہنیوں سمیت کو، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، بڑا تفصیلی حکم ہے، اس ڈائریکٹ خطاب ہے، تو ہم کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وضو میں جلدی جلدی نہیں کرنا ہے، نہ نماز میں جلدی جلدی کرنا ہے، وضو کو بڑے اطمینان سے کرنا ہے۔ اور وضو کے مستحبات یہ ہیں کہ پہلے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیے، اگر ناممکن ہے گھر کے حالات کے حساب سے تو جیسا چاہے ویسا بیٹھ سکتے ہیں آپ۔ پہلے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ وضو کی نیت ہے، وضو کی نیت ہے ابھی سناؤں گی آپ کو میں۔ اور وضو کی نیت اگر نہیں پڑھے کوئی تو وضو ہو جاتا، اور نیت پڑھنے سے وضو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، وضو کرنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو وضو کی نیت
बड़ी तफसीलात के साथ एक अलग है, मैं मुख्तसर नियत आपको बताऊं। तवज़ा लिरफ़ाइल हदस तो सिर्फ इतना बोल देना, आज़ू बिस्मिल्लाह के बाद ये पढ़ लेना काफी है। और सर ढक के रखना रहना जरूरी है। वैसे औरतों को हर वक्त सर ढाकने का हुक्म है, क्योंकि ये है कि जहाँ हदीस शरीफ में है कि जब औरत का सर खुला रहता है तो वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अपने को हर वक्त अपने घरों में भी सर ढकने की आदत रखिए, और सर ढक के रहने से रहमत के फरिश्ते आते हैं घर में और खैर व बरकत रहती है। खैर, तो वह ऐदीयकुम इलल मराफिक, और हाथों को धो कोहनियों समेत। तो कोहनियों समेत के लिए 3 वक्त धोना है हर वक्त। तो जब धोने के लिए हाथ में पानी लेंगे तो पूरा कोहनियों के पीछे तक ले जाके हाथ फिराते हुए धोना है। ऐसा यूं यूं खाली बगैर हाथ फिरा के 3 वक्त यूं 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 कर लेते हैं बहुत से लोग, तो उसमें कोहनियों के पीछे का जरा हिस्सा खुला सूखा रह जाता है। ये किताबों में उलमाए किराम लिखते हैं कि शैतान बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाता है जब मोमिन नमाज के लिए उठता है, तो किसी तरह से इसकी नमाज को बर्बाद कर दो, नमाज होने ना पाए, ये कोशिश होती है शैतान की। इसलिए उन्हें सबसे पहले तो ये है कि तहारत में बड़ा शक डाल देता है, अच्छी तरह से तहारत नहीं होने देता, ताकि इनकी नमाज पढ़े तक पढ़ के बेकार हो जाए। उसके बाद वुजू का पीछा करता है वो, और वुजू में ऐसे ऐसे वो बात होती है जिससे वुजू अच्छी तरह अदा ना हो, ताकि इनकी नमाज काबिल कबूल ना हो। तो हम सबको हमेशा जिंदगी भर हर कदम पर शैतान से मुकाबला करते हुए चढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कई जगह फरमा दिए कि इन्नहुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा वो खुला दुश्मन है, तुम्हारा खुला दुश्मन। अल्लाह ताला हमको आगाह करते जा रहे हैं हर वक्त कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके बातों में नहीं आना है, उसके वसवसों को दिल से निकाल देना है। तो हमको अल्लाह ताला बार बार आगाह कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत इसकी तरफ से केयरफुल रहना चाहिए, पूरा तैयार रहना चाहिए मुकाबले से, उसको हराने का है, हमको जीतने का। खैर, ये हो गया हाथों का धोना, कोहनियों समेत धोना है 3 बार। उसके बाद में कुरान की आयत शरीफा है, वमसहू बिरुउसिकुम, और अपने सरों का मसा करो। वमसहू मसा करो, रासुन कहते हैं सर को, उसके जमा रूसिकुम है, और अपने सरों का मसा करो। देखिए इस्लाम की बात कितनी प्यारी है कि कोई बात ऐसी नहीं है जो बंदा नहीं कर सके। जैसा आप सर हाथ पांव धोने का हुक्म है, वैसा सर मुंह हाथ पांव धोने का हुक्म है, वैसा सर को धो हर बार। बोल तो कितनी मुश्किल आती थी हमारे लिए कि हर बार बंदा सर को धोता रहे। तो सर के मसा का हुक्म है। हर कोई हुक्म अल्लाह ताला का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नहीं है कि बंदा नहीं कर सके, करने वाले को कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, कोई मुसीबत हो, ऐसा कोई एक हुक्म भी नहीं है। हर हुक्म में हमारे दुनिया और आखिरत दोनों के फायदे। ये नहीं है कि खाली मरने के बाद फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं। हर हुक्म में आप जितना गौर करते जाइए, हमारे दुनिया के भी बेहिसाब फायदे हैं, आखिरत के भी बेहिसाब फायदे हैं। सेहत के हिसाब से भी बहुत सेहत बहुत अच्छी रहती है इस अहकाम इस्लाम पर, खुसूसकर वुजू जो 5 वक्त करते हैं उनकी सेहत खराब नहीं होती। उनके तो बहुत सी वो तफसीलात तो अलग है, खैर मुख्तसर अर्ज करके मैं आगे बढ़ूंगी। अपने सरों का मसा करो, तो कुरान के अल्फाज हैं सर का मसा करो। अगर मसा के लिए हम हाथों में जो पानी लेते हैं, वो पानी को अगर हम पेशानी पे से हमारे उंगलियां फिराना शुरू करेंगे तो वो सर का मसा नहीं होता। क्योंकि इस्लामी तालीमात में एक बात ये है कि पानी हाथ में लेकर कोई जगह को धो ले अगर, तो वो पानी इस्तेमाल किया हुआ होगा। अब जो पानी बचा हुआ है हमारे हाथों को, जो हमारे हाथ अभी कच्चे हैं, तो वो पानी हमारा इस्तेमाल किया हुआ पानी होगा, मुस्तामिला पानी कहा जाता है। तो वो पानी से वुजू नहीं होता, मुस्तामिला पानी से वुजू नहीं होता। अगर हम हमारे पेशानियों पे से हमारे हाथ ले जाएंगे मसा के लिए, पेशानी पे से होते हुए ले जाएंगे अगर अपने हाथों को, तो फिर सर का मसा जो फर्ज है वो अदा नहीं होगा। लिहाजा सर के मसा के लिए जब भी हम हाथ अपने भिगोएंगे
तो वो इस तरह भिगो, इस तरह लेना है हाथों को, डायरेक्ट पेशानी के बालों से लगना है हाथ हमारा। पेशानी के बालों से 3 उंगलियां पेशानी के बालों पे से लेते हुए जाएंगे, और उसके बाद अब कलमे की उंगली जो बाकी रह गई उसको कान के अंदर और बाहर से अंदर से लेंगे, और कान के बाहर से अंगूठा लेंगे, अंगूठे को फिराएंगे। ये इसमें एक एक हुक्म में, एक एक हरकत में सेहत के एतबार से बेहिसाब फायदे। उसके बाद हाथों का जो पिछला हिस्सा रह गया था, जो इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसको गर्दन के पीछे से लेंगे। गले को नहीं लगाना है हाथ, सिर्फ गर्दन पे से हाथ फिराना है। उसके इतने बड़े फायदे हैं कि वो आदमी कभी पागल नहीं होगा, बल्कि है ये तिब्बी इस्लाम और मेडिकल साइंस के जो किताबें हैं उसमें है कि जो गर्दन का मसा करता रहता है वो इंसान पागल नहीं होता। उसके ये फायदे हैं। खैर हर चीज के बेहिसाब फायदे हैं। खैर आगे चलिए। उसके बाद हुक्म है अर्जुलकुम इलल काबैन। रिजल कहते हैं पैर को। अर्जुलकुम तुम्हारे पैरों को धो लिया करो, इलल काबैन टखनों समेत। काब कहते हैं टखने को। काब के मायने हैं ऊंची जगह को, ऊंचे जगह को, इसलिए काबे को काबा कहते हैं कि वो शहर मक्का में सबसे ऊंचा है। खैर तो काब कहते हैं टखनों को। तो कुरान के अल्फाज है इलल काबैन, तो उसका मतलब क्या हुआ? टखनों समेत अपने पैरों को धो लिया करो, इलल काबैन अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पैरों को धो लिया करो टखनों समेत के अल्फाज हैं कुरान के। टखनों समेत धोना जरूरी है, ये फर्ज है। उसमें से बाल बराबर भी जगह अगर सूखी रह गई तो फिर हमारा वुजू नहीं हुआ। तो लिहाजा हमको पूरी तवज्जो के साथ वुजू करना है, और टखनों समेत। अगर बाज लोग आजकल ऐसा भी हो रहा है कि खड़े खड़े बेसन में वुजू करते हैं और खड़े खड़े मग से पैरों पर पानी डाल लेते। तो पैरों पर पानी डालने से बाज वक्त पूरा हिस्सा नहीं भीगता, और जो है उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है, पैर की उंगलियों का। इसलिए है कि उंगलियों का खिलाल नहीं करने से पानी नहीं पहुंचता, बाज वक्त क्या अक्सर वक्त नहीं पहुंचता है। लिहाजा पैर की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। एक एक सुन्नत के अदा करने पर इतने बड़े बड़े अजर सवाब के वादे हैं, वो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो अर्ज किया जाएगा। तो लिहाजा पैर की उंगलियों में खिलाल करना है, बाएं हाथ की छोटी उंगली से करने का तरीका है। तो लिहाजा बैठकर, अगर उतना मुश्किलात हैं तो कुर्सी पे बैठ के वुजू कर सकते हैं। बैठकर वजू करने से हम पैरों की उंगलियों का खिलाल भी कर सकते हैं, और टखनों के पीछे भी हाथ फिरा लो ताकि एहतियातन खड़े खड़े पानी डालने से पानी ना पहुंच सकने का इम्कान रहता है। तो लिहाजा इस तरह से वजू कर लीजिए, और वजू को अच्छी तरह से जहन में रखिए। दूसरी बात, वजू करना खत्म होते ही ये हदीस में बताया गया है कि किबले की तरफ मुंह करके कलमे की उंगली उठाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जो पढ़ लेता है उसका खातिमा ईमान पर होता है। उसके बाद इन्ना अंजलना का सूरा एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद एक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन व जअलनी मिन इबादिकस सालिहीन ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है ये पढ़ने की, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाया ना, मैं पसंद करता हूँ पाक साफ रहने वालों को और तौबा करने वालों को। तो हम दुआ कर रहे हैं, वजू के बाद की दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह मेरे को तौबा करने वालों में से, बहुत पाक साफ रहने वालों में से बना दे, और मेरे को उन लोगों में से बना दे जिनके बारे में आपने फरमाया कि उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये औलिया अल्लाह की शान में बयान किया गया है। तो अल्लाह हमको उन लोगों में से बना दीजिए। तो ये दुआ मुख्तसर है, एक दो वक्त भी अगर आप देख के पढ़ लें तो फिर आपको जबानी याद हो जाता। ये अरबी जबान की
फजीलत है, कुरान की करामत है ये कि इसको याद करने में बड़ी मेहनत नहीं लगती है, थोड़े वक्त तवज्जो से पढ़िए, खुद ब खुद ज़बानी याद हो जाता। खैर चलिए, ये वुजू हो गया, ये वुजू के बाद की दुआ हो गई है। तो अब हमको एक बात का ख्याल ये रखना है कि वुजू ऐसी जगह बैठ के करना है जहाँ पर हमारे ऊपर छींटे ना उड़े, वुजू के पानी के छींटे हमारे ऊपर नहीं उड़ना है। इसलिए अगर कोई बेसन में नहीं, अगर कहीं बैठ के वुजू कर रहे हैं तो थोड़ा ऊंचा चौकी वगैरह पर किसी चीज पर बैठ के वुजू करना है, ताकि वुजू के पानी के छींटे हमारे ऊपर ना उड़ने पाए। इस तरीका का वुजू का ख्याल रखना है। अब वुजू के बाद तयम्मुम का जिक्र है। तयम्मुम के बारे में ये लिखा है कि बाज लोग बिला वजह सर्दी हो रही, बल्कि अब जान पे आ रहा, बल्कि क्या क्या सोच लेके नहीं मालूम, बिला वजह भी तयम्मुम कर लेते हैं, सर्दी हो रही वो हो रही बल्कि, तो वैसा तयम्मुम कर, तो तयम्मुम होता ही नहीं। जहाँ तयम्मुम के जो मसाइल कुरान में लिखे हुए हैं, तयम्मुम का तयम्मुम के बारे में भी कुरान में लिखा हुआ है। तो तयम्मुम के लिए ये शर्त है कि अगर पहला लफ्ज ये लिखा हुआ है कि अगर पानी ना हो, पानी ना हो का मतलब ये है कि 1 मील दूर तक पानी ना हो, तो पानी ना होने के हिसाब में आता है वो। खाली घर में पानी नहीं है तो नहीं, अगर घर में कोई चीज नहीं है तो औरतें भी बाहर निकलती हैं, बाजार से कुछ जरूरत पड़ी तो खरीदते हैं, लाते हैं, घर में कोई मर्दाना नहीं है बल्कि नहीं बैठे रहते। ऐसा ही पानी ना हो तो थोड़ी दूर पर गवर्नमेंट के नल, बोरिंग वगैरह जो भी रहता है, उससे हम इंतजाम पानी का वक्त के पहले पहले कर ले सकते हैं। इंसान चाहा तो क्या नहीं कर सकता, कर ले सकते हैं। लिहाजा हमको पानी का इंतजाम करना है। और ये लिखा हुआ है कि अगर पानी की जगह कोई मूजी जानवर बैठा हुआ है, पानी तक आप नहीं पहुंच सकते, मतलब बड़ा सांप शेर वगैरह कुछ बैठा हुआ है, जाके आप वहां से पानी नहीं ला सकते, या कोई आपका दुश्मन खातिर जो तलवार लेकर बैठा हुआ है, नहीं जा सकते, तो ऐसे सूरत में तयम्मुम करना ये लिखा हुआ है। और एक बात ये है कि अगर बीमार हो, ऐसे बीमार हो कि डॉक्टर ये कह दे कि पानी का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है, मर्ज के बढ़ने का अंदेशा है, तो वैसी सूरत में तयम्मुम की इजाजत है। कोई मुसलमान डॉक्टर देख कर ये बोल देना कि आपकी हालत ये है कि अगर आप तयम्मुम, अगर आप वुजू करेंगे तो आपके मर्ज के बढ़ जाने का अंदेशा है, या ऐसा है कि भाई मर्ज पैद इतने ज़ईफ हैं या ऐसी हालत कमजोर है कि अगर वुजू करेंगे 5 बार तो फिर वुजू करने से कोई बीमारी पैदा होने का अंदेशा है, तो इस सूरतों में तयम्मुम करने की इजाजत है। और तयम्मुम करने का तरीका ये बताया गया है कि पहले पाक मिट्टी पर, मिट्टी या मिट्टी की जिन्स, मिट्टी की जिन्स बोलते हैं मिट्टी के किस्म, किस्म के मतलब मिट्टी, मिट्टी का बर्तन, अगर घर में मिट्टी का घड़ा है तो उस पर भी हाथ मार सकते हैं। मिट्टी के बर्तन को अगर पे हम मारते, तो मिट्टी है वो, तो उसके ऊपर गरद होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज ऐसी है जो मिट्टी की नहीं है तो उस पर गरद होना लाजमी है। मतलब ऐसे मकाम पर है जहाँ पर दरवाजा या सामान में कोई ऐसा लकड़ी की या लोहे के कुछ है चीज, उस पे वजू करना है, तो अगर तयम्मुम करना है अगर उसके ऊपर, तो फिर गरद होना लाजमी है, बगैर गरज के नहीं होता। और मिट्टी, चुना, गच्ची, सीमेंट, पत्थर, ये सब मिट्टी की जिन्स में दाखिल है। तो मिट्टी और मिट्टी की जिन्स अगर रही तो उस पे गरज होना जरूरी नहीं है, बगैर गरज के भी तयम्मुम कर हो सकता है। और तयम्मुम में नियत फर्ज है, बगैर नियत करे के तयम्मुम नहीं होता। वुजू में क्या है, नियत करना मुस्तहब है, और अगर नहीं करे तो भी वुजू हो जाता, और नियत करने से वुजू इबादत में लिखा जाता। मगर तयम्मुम के बारे में ये लिखा है कि तयम्मुम के लिए नियत करना फर्ज है, अगर नियत करे बगैर तयम्मुम करेंगे तो तयम्मुम होगा ही नहीं। तो नियत ये है, औज़ु बिस्मिल्लाह तो हर
नेक आमाल के पहले करना है। नियत ये है अतयम्ममू लिरफ़ाइल हदस। और एक बार सुन लीजिए, अतयम्ममू लिरफ़ाइल हदस। और एक बार सुन लीजिए, अतयम्ममू लिरफ़ाइल हदस। ये नियत पढ़ के तयम्मुम करना है। उसके बारे में ये लिखा है कि पहले दोनों हाथ मारना है, उसके बाद वो दोनों हाथों को अपने चेहरे पर पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, ये कान की लौ से ये कान की लौ तक, आंखों के हलकों में, नाक के हलके में अच्छी तरह से हाथ फिराना। इस तरह हाथ फिराना के बाल की अन्नी के बराबर भी जगह सूखी न रहे। और दूसरी बार फिर हाथ मारेंगे। हाथ मार कर अपने दोनों हाथों को, सिर्फ 2 ही बार हाथ मारना है, अपने हाथों को कोहनियों समेत मसाह करना है। यानी इस तरह करना है कि बाल की अन्नी के बराबर भी जगह बाकी ना रहे। तो दोनों कोहनियों समेत अपने हाथों को उंगलियों में खिलाल करते हुए इस तरीके से इत्मीनान से पूरे इस पे हाथ फिराना है कोहनियों समेत। तो ये हो गया तयम्मुम। और तयम्मुम के बारे में अल्लाह का फजलो करम देखिए कि एक तो तयम्मुम की इजाजत है अगर वजू न कर सके तो, और दूसरा तयम्मुम गुस्ल के बदल भी तयम्मुम है। ये खास बात है, बहुत अहम, कि अगर कोई नापाक है और उनको गुस्ल की हाजत है, गुस्ल करना जरूरी है, और वैसे वक्त पर बीमार है और वजू नहीं कर सकते, तो उनको गुस्ल के बदल का भी तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है। गुस्ल के बदल का तयम्मुम करने की वही तरीका है जो हम वजू के बदल का जो तयम्मुम करते हैं ना, वही तरीका गुस्ल के बदल वजू करने का तरीका भी बिल्कुल वही है। मगर नियत क्या करेंगे? गुस्ल के वजू का, गुस्ल के बदल का जो तयम्मुम करते हैं, उसमें नियत ये करना है कि या अल्लाह मेरी नापाकी दूर होने के लिए, आप उर्दू में बोल लीजिए इसको, नहीं तो समझना मुश्किल होगा। नापाकी दूर होने के लिए मैं गुस्ल के बदल तयम्मुम करती हूँ। ये अल्फाज बोलना जरूरी है। तयम्मुम में नियत फर्ज है, बगैर नियत के तयम्मुम नहीं होता। तो उसका तरीका बिल्कुल वही है जो वुजू के तयम्मुम का जो तरीका है, गुस्ल के तरीके का, गुस्ल के बदल के तयम्मुम का भी वही तरीका है। अब यहाँ पर हमको एक बहुत अहम बात मालूम हो रही कि अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि किसी कीमत पर नमाज खजा ना हो। नापाक है तो भी तयम्मुम करो गुस्ल का। और एक गुस्ल में ये भी फिक्र में लिखा हुआ है कि एक तयम्मुम 2 नियतों से कर सकते हैं, यानी गुस्ल के बदल की नियत और वुजू के बदल की नियत। वैसे 2 अलग अलग करे तो अच्छा है, मगर इजाजत है कि एक तयम्मुम में 2 नियत करके तयम्मुम कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो लिहाजा तो इससे ये बात मालूम हुई कि अगर नापाक है इंसान, गुस्ल की हाजत है, तब भी वो तयम्मुम करके, वो गुस्ल का तयम्मुम करके नमाज पढ़े, मगर नमाज न छोड़े। तो नमाज की इतनी अहमियत है कि अगर इतने इस कदर हालत है, तब भी तयम्मुम करो, गुस्ल का तयम्मुम करो, वजू का तयम्मुम करो और नमाज पढ़ो, नमाज ना छोड़ो। अगर किसी ऐसे मकाम पर सफर में कहीं चले गए हैं जहाँ पर किबला किधर है नहीं मालूम है, तो जिधर थोड़ा गौर फिक्र करो, फिर जिधर आपका दिल गवाही दे उधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, मगर नमाज पढ़ो। अगर बीमार हैं, खड़े नहीं हो सकते, तो बैठ के नमाज पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो। बैठ भी नहीं सकते तो लेट के नमाज पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो। लेटे लेटे रकात बांधने की तरह इशारा करते हैं, अगर वो भी करने का हाथों में दम नहीं है, ऐसी हालत है, तो फिर बगैर हाथ का इशारा करे के लेटे लेटे वैसे ही पूरे अरकान अदा करेंगे और नमाज के पूरे अल्फाज जो जो पढ़ना है वो सब पढ़ेंगे। मगर इस हालत में है तब भी नमाज पढ़ो। नमाज कोई इजाजत नहीं है किसी किस्म कीमत पर के खजा करो बाद में अदा करो, ऐसे अल्फाज कहीं कहीं पूरे कुरान पूरे अहादीस मुबारक में कहीं भी नहीं है
کہ इतनी मजबूरी है तो नमाज को खजा कर लो, बाद में अदा कर लो, ऐसा कहीं भी नहीं है। बहुत से लोग बड़ी आसानी से कह लेते हैं कि चलो खजा पढ़ लेंगे, बाद में खजा पढ़ लेंगे। इजाजत कौन दिया? ना अल्लाह दिया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए। तो नमाज को खजा करके बाद में पढ़ लेंगे, ये जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इत्तेफाकन कभी खजा हो जाए, इत्तेफाकन बरसों में कभी खजा हो जाए तो उसको फौरी अदा करने का हुक्म है। फौरी व खजा नमाज को पहले अदा करना, फिर उस वक्त की नमाज आपको पढ़ना है। फर्ज करिए असर का वक्त है तो आप पहले असर जोहर की खजा हुई है तो जोहर की खजा पहले पढ़ेंगे, बाद में असर पढ़ेंगे। अगर इतना तंग वक्त है कि वक्त असर का जा रहा है तो फिर वैसे वक्त में पहले असर पढ़ लीजिए, बाद में जोहर की खजा अदा करिए। ये तरीका है। और ये तरीका है नमाज के बारे में कि अगर ये कपड़े नहीं है, हालांकि नमाज में जिस सतर का ढाकना, सतर मतलब छुपाने की चीज, औरतों के लिए जैसा आप सबको मालूम है, ये नमाज के बयान में ये तफसील आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर इतने कपड़े नहीं है जिसे छुपाना फर्ज है तो फिर वैसे लोगों के लिए ये हुक्म है कि जो पहले हुआ था साहबा के जमाने में, एक वाकया ऐसा है कि इतनी तंगदस्ती और कपड़े नहीं थे तो जमीन में अपने जिस्म के साथ तंग गड़ा खोद के सिर्फ मुंडी गड़े के बाहर, पूरा जिस्म गड़े के अंदर। वैसे लोगों को इजाजत है कि वो बैठ के नमाज पढ़े, खड़े होके नहीं पढ़ना है। तो अगर इतने कपड़े भी नहीं है तो जमीन में गड़ा खोद कर बैठ कर नमाज अदा करिए, मगर नमाज अदा करिए, नमाज को खजा मत करिए। तो इतनी ताकीद है कि नमाज को किसी कीमत पर खजा करने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। तो मैं कुछ सुनने में आता है कि बाज बहनें कह लेती हैं कभी रास्ते में यहाँ वहाँ कि चलो घर को जाके खजा पढ़ लेंगे। अरे ऐसा तो इजाजत नहीं है हमको कहीं भी। और खुसूस कर खवातीन को जब निकलते हैं बाजार हमको किसी भी कामों को, तो वक्त देखकर निकलिए कि नमाज का वक्त तो नहीं जा रहा। अगर वक्त करीब है तो ठहर के वो नमाज पढ़ लेके निकलना, या नहीं तो ऐसे वक्त पे निकलना कि वापस आके आप नमाज पढ़ें। या नहीं तो रास्ते में कोई मस्जिद है जहाँ पर नमाज हो चुकी है मर्दाने की, मर्दाना जा चुका है, तो वैसे वक्त पर मसाजिद में जाकर नमाज औरतें पढ़ सकती हैं। लिहाजा किसी कीमत पर नमाज को खजा ना होने की कोशिश करना है। और एक बात ये मालूम है आप सबको, मगर मैं फिर भी थोड़ा दोहराते हुए आगे बढ़ूंगी कि बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों को 7 बरस का होने के बाद नमाज सिखा दो, और 10 बरस के होने के बाद अगर नमाज ना पढ़ें तो उनको मारो। हमारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहमत आलम हैं, मगर कभी किसी बात पर मारो का हुक्म नहीं दिया। आप वो जिहाद और जंग का मामला अलग था, दुश्मन से मुकाबले का मगर खाली किसी को मारो का हुक्म आप नहीं दिए कभी भी। मगर नमाज इतनी अहम तरीन चीज है कि बच्चों को बचपन से आदत नहीं डाले तो बच्चे नमाजी नहीं होते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के होने पर नमाज नहीं पढ़े तो मारो के अल्फाज फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बावजूद क्या आप रहमत आलम है, रहमत का तक़ाज़ा यही हुआ कि बच्चे नमाज के पाबंद बन जाना है। नमाज के पाबंद के लिए माँ को बहुत कोशिश करना पड़ता है। बच्चों को सुबह सुबह स्कूल के टाइम के लिए सर्दियों में, उसमें बच्चे रातों को जागे हुए रहो, तबे जरा ठीक नहीं, तभी उठा के तैयार करके स्कूल को भिला देते हैं। ये नहीं सोचते कि बच्चों को इतनी सर्दी का है, इतनी सुबह कैसा उठा देना। 3 साढ़े 3 साल के 4 साल के बच्चों को तैयार करके भिजा देते, बच्चों को समझा मना के। उनकी दुनिया बनाने की इतनी फिक्र है उनकी आखिरत बनाने की कोई फिक्र नहीं है। अगर माँ को सच्ची मोहब्बत है तो फिर पहले आखिरत बनाने की फिक्र करना है, बाद में दुनिया बनाने की फिक्र करना है। इसकी तफसीलात तो अलग है। खैर, तो ये यहाँ पर बयान खत्म हो गया तयम्मुम का। अब गुस्ल के बारे में अर्ज करना है। गुस्ल के बारे में अर्ज करना ये है कि सादा गुस्ल जब हम अच्छे हैं तो कैसा भी कर लो। ये गुस्ल के जो मसाइल अब आपको सुनाए जाएंगे इंशाल्लाह।
تو उसमें सिर्फ नापाकी से पाक होने के गुस्ल के मसाइल हैं। अगर कोई नापाक नहीं है तो फिर जैसा चाहे गुस्ल कर सकते, उसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं है। अगर नापाक है तो करना है। इसके बारे में एक आयत शरीफा आपको मैं सुनाऊंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। आयत का तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है। ये कितनी हमारे लिए खुशी की बात है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, बेशक के लफ्ज से शुरू हुई आयत, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बहुत दोस्त रखते हैं, बहुत चाहते हैं। किसको चाहते हैं? बहुत तौबा करते रहने वाले को और बहुत पाक और साफ रहने वाले को। तो नमाज के लिए पाकी और सफाई फर्ज है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। तो पाकी और सफाई के, पाकी के मसाइल बयान किए जाते हैं। तो पाकी में ये हमको तकल्लुफ करना है। एक होता है अरबी जबान में लफ्ज ताहिर, ताहिर के माने पाक। एक लफ्ज होता है अरबी जबान में मुताहिर, मुताहिर के माने बहुत पाक। तो आयत शरीफा में क्या हुक्म है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तो मुताहिर, पाक नहीं, ताहिर नहीं, मुताहिर। तो मुताहिर रहना है हमको, मुताहिर रहना है नमाज के लिए। और मुताहिर के लिए वजू के भी फराइज और गुस्ल के फराइज कुरान में तफसील से बता दिए गए हैं। कुरान की तशरी अहादीस मुबारका में की गई है। वो तो हर कुरान की आयत शरीफा की तफसील अहादीस मुबारका ही से हमको लेना है। अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील से तमाम फराइज की तफसील बता दी कि ये फर्ज को इस तरीके से अदा करना है। तो नापाकी कौन से भी किस्म के रहो, हर नापाकी का तरीका से पाक होने का तरीका एक ही है। तरीका ये है कि पहले अच्छी तरह से तहारत करना है। तहारत के बारे में और ये भी अर्ज करना है कि नापाक है और पाकी का गुस्ल कर रहे हैं, उसके लिए तहारत करना वैसा नहीं है, बल्कि हमेशा भी हम पाक रहे तो भी अच्छी तरह तहारत करने की आदत डालिए। अपने बच्चों को भी आदत डालिए बचपन से अच्छी तरह तहारत, क्योंकि अल्लाह ताला मुताहिर फरमाए हमारे को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाकी का बड़ी ताकीद से हुक्म दिए हैं। और इसमें हमारी दुनियावी सेहत के भी बेहिसाब फायदे हैं। ऐसे लोग आप देखे होंगे या गौर करिए, जो उम्र रसीदा लोग रहते हैं और वो जो पाबंदी से वुजू करते रहते हैं, उन्हें बहुत बनिस्बत दूसरों के बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और बीमारी आए तो भी जल्दी चली जाती है। ये अल्लाह के हुक्म का फजल है। खैर, तो अच्छी तरह तहारत करना, ये फिक़ह में लिखा हुआ है। अच्छी तरह का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अगर कर सके तो गुस्ल के लिए जब आप तहारत को जाएंगे तो साबुन से तहारत करिए, 3 बार तहारत करिए। हमेशा आदत डालिए कि ज्यादा नापाकी अगर हो जाए, पेशाब और पाखाना के लिए करना यह है कि साबुन से तहारत करिए, क्योंकि हम अल्लाह के महबूब बंदे बनना है। तो तहारत में हमको बहुत ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा तहारत करना है, बहुत। और जो है सो थोड़ी, और जरूरत से फारिग होते ही तहारत करना शुरू नहीं करना। जरूरत से फारिग होने के बाद 1 मिनट 10-12 सेकंड ठहर जाइए, उसके बाद तहारत करना शुरू करिए। ये आदत डालिए, अपने बच्चों को भी बचपन से समझाइए, क्योंकि बच्चे उनको, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा उसका बच्चा दोज़ख में जले। तो माँ की अगर हक की सच्ची मोहब्बत है तो पहले बच्चों की आखिरत के लिए तरबियत करने, इसके लिए कोई मुश्किल है ना, कोई मुसीबत है। समझा के बेटे देखो माँ ऐसा करना है, देखो ऐसा करना है, अपने को बोल दिया समझा के, तो बच्चे बचपन से जब चलाए तो चलते। खैर चलिए, तो अब इस तरह अच्छी तहारत करने तरह तहारत करना। उसके बाद में हम्माम में घुसने से पहले गुस्ल की जो नीयत है वो नीयत पढ़ना है। वो नीयत ऐसी है कि आम तौर पर हर किसी को, आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सबको जल्दी वो याद नहीं रहती। तो जरूरी नहीं है कि अरबी में ही पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उर्दू में भी पढ़ ले सकते हैं। और नीयत पढ़ना मुस्तहब है, फर्ज नहीं है।
गुस्ल में नियत पढ़ना फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। पढ़ने से गुस्ल भी इबादत में लिखे जाता है, पढ़ना चाहिए, मगर असल गुस्ल के फराइज पूरे अदा करना है। तो नियत पढ़ना यह है, चाहे कौन सा भी गुस्ल हो, फलानी नापाकी बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ या अल्लाह मैं गुस्ल करती हूँ मेरी नापाकी दूर होने के लिए, मेरे बदन की तहारत के लिए, तेरे हुक्म से मैं गुस्ल करती हूँ। इतना बोलना काफी है, चाहे कौन से भी किस्म का गुस्ल रहने दो। मैं फिर एक बार बोलूंगी, या हम्माम में दाखिल होने से पहले, हम्माम में नहीं, हम्माम में तो कोई किस्म की दुआ पढ़ना मना है, या अल्लाह का नाम लेना, कलमा पढ़ना, कुछ भी पढ़ने का हुक्म नहीं है। हम्माम में पढ़ना सख्ती से मना है, बेअदबी है, हरगिज हम्माम में नहीं पढ़ना चाहिए। वो पहले के बाद लोग ये सिखाते थे, अभी भी मेरे को सुनने में आ रहा लोगों से, इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ कि हम्माम में बैठ के 5 कलमे पढ़ना और उसके गुस्ल की दुआ पढ़ना, वो एक लोटा भर पानी में फूकना, फिर वो पानी फूक के वो पानी सर पे, कंधों पे, उस पे डाल लेना, ये तरीका असल सिखाते रहते हैं लोग। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, बड़ी-बड़ी किताबों में भी साफ लिखा हुआ है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से खुदा ना खास्ता गुनाहगार होंगे। हम्माम में बैठ के कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ के फूक के पानी में फूक के वो पानी नहीं डालना है। लोग ये समझते हैं कि ऐसा करे बगैर गुस्ल नहीं उतरता, ये बहुत गलत बात है। तो हम्माम में दाखिल होने से पहले गुस्ल भी वुज़ू कर तहारत करना है अच्छी तरह से, फिर वुज़ू करना है, वुज़ू करके ये नियत पढ़ना है गुस्ल की, या अल्लाह मेरी नापाकी दूर होने के लिए, मेरे बदन की तहारत के लिए, तेरे हुक्म से मैं गुस्ल करती हूँ। ये तर्जुमा है उस दुआ का, ये तर्जुमा पढ़ लिए तो काफी हो जाता है। असल नमाज की नियत जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो फिर हर नियत हम उर्दू में पढ़ सकते हैं, ये इजाजत है। खैर, इस तरह नियत पढ़ लेने के बाद में जब आप हम्माम में दाखिल होंगे तो हुक्म है कि औरतें नाफ से लेकर घुटने तक एक कपड़ा जिस्म पर डालकर बैठना है। हम्माम में बिल्कुल बरहना बैठने का नहीं है, उससे बहुत सी दुनियावी भी खराबियां होने के इम्कानात हैं। खैर, तो एक कपड़ा जरूर डाल लीजिए नाफ के थोड़ा ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक। हमेशा कौन सा भी गुस्ल है, तो पाकी का नापाकी का सादा गुस्ल भी, हमेशा ये आदत रखिए कपड़ा डालना जरूरी है। कपड़ा डालकर उसके बाद में जब आप गुस्ल करेंगे तो सबसे पहले ये लिखा है कि सर पे पानी डालना है, और सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक हाथ फिराकर अच्छी तरह से 3 मर्तबा पानी बहाना है। हाँ, गुस्ल के फराइज, ये पहले फराइज बोलना है। हम्माम में जाने के बाद गुस्ल के फराइज अदा करना है। गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। 3 बातें ये फर्ज हैं कि अच्छी तरह गरारा करना है पहले, कुल्ली नहीं। आप समझते होंगे कुल्ली और गरारे का फर्क। तो गरारा करने का हुक्म है, और उसके बाद 3 बार नाक में अच्छी तरह से पानी चढ़ाकर बाएं हाथ की छोटी उंगली नाक में फिराकर अच्छी तरह से नाक को साफ करना है 3 बार। 3 बार गरारा करना, 3 बार नाक को साफ करना, उसके बाद 3 बार तालू के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक अच्छी तरह से हाथ फिराते हुए, ताकि कोई बाल के बराबर भी अन्नी सूखी न रहने पाए। इस तरह फिराते हुए पूरे जिस्म पर से 3 बार पानी बहाना एक फर्ज है। अब उसके बाद अब आप साबुन लगाइए, 6 बार पानी डाल लीजिए, उससे कोई उसका कोई वो नहीं है, उससे कोई ममानियत नहीं है। मगर पानी का इसराफ मना है, उसका भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि पानी के इसराफ के बारे में ऐसे हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो एक अल्फाज सबके लिए बहुत काफी है कि अगर आप दरिया में खड़े हुए हों तब भी पानी को इसराफ, दरिया के किनारे भी बैठे हुए हों तभी पानी का इसराफ मत करिए। जितनी जरूरत है उतना ही पानी लेकर आप वुजू गुस्ल वगैरह कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, हर सुन्नत पर अमल करने का बेहद सवाब है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तमाम बातों की पाबंदी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।